हाँ जी गाइस, सारे बच्चों ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ? ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਟੈਂਪਟ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੋ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਵੈਲਕਮ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਇਨ ਟੂਡੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਕ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਪ੍ਰੈਸ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨੋਟਸ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਕਰਾਓਗੇ ਸਰ? ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ 21 ਡੇਜ਼ ਚੈਲੰਜ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ 11 ਡੇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ 12th ਨੰਬਰ ਡੇ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ? ਐਡਵਾਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ। ਤਿੰਨ ਸਬਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕਾਸਟਿੰਗ, ਐਫਐਮਐਸਐਮ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਅਕਾਊਂਟ। ਐਡਵਾਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਡੇ ਨੰਬਰ 12 ਹੈਗਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 12 ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵਧੀਆ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਏਐਸ ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਏਐਸ ਨੰਬਰ 7। ਏਐਸ ਨੰਬਰ 5 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5 ਨੰਬਰ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਏਐਸ ਨੰਬਰ 7 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ AS7 ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਜੱਜ ਐਂਡ ਇਵੈਲੂਏਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ 'ਚ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹਲੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਐਨ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ। RSA ਕੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ RSA ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਿਖਾ ਅਕੈਡਮੀ, ਆਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੇ ਨੰਬਰ 12 ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ AS ਨੰਬਰ 5, ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਰ ਲਾਸ ਫॉर ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ, ਪ੍ਰਾਇਰ ਪੀਰੀਅਡ ਆਈਟਮ ਐਂਡ ਚੇਂजेस ਇਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪॉलिसी। ਨਾਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਫॉर ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ, ਪ੍ਰਾਇਰ ਪੀਰੀਅਡ ਆਈਟਮ ਐਂਡ ਚੇਂजेस ਇਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪॉलिसी। ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚੇਂजेस ਇਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਰ ਲਾਸ ਫॉर ਦੀ ਪੀਰੀਅਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ AS ਨੰਬਰ 7 ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਜੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਆਓ ਕਾਕੇ, ਆਓ ਕਾਕਾ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਪੁੱਤਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1, A company Z Limited is engaged in the business of providing consultancy services। ठीक है जी, consultancy services ਦਿੰਦੀ ਹੈ Z Limited। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ few days back it received a notice from GST department raising a demand of GST on the consultancy services provided by it for ਰੁਪਏ 5 ਲੱਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ GST ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ GST ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ GST ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। Recently Z Limited paid the demand। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। In the books payment is recorded as an extraordinary expenditure। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ दुख रहा है। कहते यार हम कंसल्टेंसी सर्विस देते थे, जीएसटी वाले आ गए, ऐसे 5 लाख रुपए देना पड़ गया। कहते कोई ठीक बात तो नहीं है, ये होना नहीं चाहिए था, हो गया, चलो इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डालते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है? एज पर AS5 समथिंग विच इज नॉट ऑर्डिनरी, विच इज नॉट एक्सपेक्टेड टू अक्कर रेगुलरली और फ्रिक्वेंटली। अरे भाई GST है, इफ यू आर डूइंग द बिजनेस इन इंडिया, ताई ताई कौन? निर्मला ताई कहती GST दे दो, सरकार चलानी है, घर चलाना है, सॉरी घर नहीं चलाना, देश चलाना है। अगर इन पैसों से उसे अपना घर चलाना है फिर तो बात कुछ और ही हो गई ना, फिर तो कुछ गलत हो रहा है। हाँ जी, घर नहीं चलाना इन पैसों से, ताई आपने पैसे लेने हैं और सरकार चलानी है, देश चलाना है, इन पैसों से अपना पर्सनल घर नहीं चलाना है। हाँ जी, तो जीएसटी तो भैया देना पड़ेगा, इंडिया में बिजनेस कर रहे हो जीएसटी तो देना पड़ेगा। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है कोई, ये तो ऑर्डिनरी है। तुम तो डेली बेस पर ये काम करते हो तो ये तो एक्सपेक्ट करेगा, ये तो अक्कर करेगा रेगुलरली फ्रीक्वेंटली, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। क्वेश्चन पूछता है whether the payment of tax demand raised by the authority can be recognized as an extraordinary item। No, payment of tax can't be recognized as an extraordinary item in the given case providing the consultancy service is an ordinary activity of Z Limited, so GST paid pursuant to the demand paid by GST department is also a part of ordinary activity of the company। recognizing such payment as extraordinary item is contrary to AS5। तो आपकी ट्रीटमेंट गलत है, कृपया करके इसको सही करें। पहला प्रश्न खत्म हुआ। दूसरे प्रश्न पर आते हैं जी। कहता जी एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग विल कॉन्स्टिट्यूट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और नॉट एज पर AS5। तो AS नंबर 5 में बड़ा स्पेशल एक चीज होती है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी आता है, 4-5 पॉइंट बना के दे देगा और हर एक पॉइंट 1 नंबर का होता है और पूछते कहते जी आप बताओ इनमें से अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज माना जाएगा नहीं माना जाएगा। तो हर एक केस को पढ़कर अकॉर्डिंगली अपन ने पुत्र उत्तर देना होता है। अब देखते हैं जी क्या पूछ रहा है। फर्स्ट पॉइंट,
2 पॉइंट दिए, इनमें हमें बताना है कि क्या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या नहीं है। पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ अ फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेचुटी स्कीम बाय एन एम्प्लॉयर इन प्लेस ऑफ एडहॉक एक्स ग्रेशिया पेमेंट टू एम्प्लॉइज ऑन रिटायरमेंट। कहता जी हम ना पहले क्या करते थे, एडहॉक एक्स ग्रेशिया पेमेंट देते थे टू द एम्प्लॉइज ऑन रिटायरमेंट, मतलब जब रिटायर होता था एम्प्लॉय तो एम्प्लॉयर अपने मन से एडहॉक जिसका जितना मन करता था, जिस एम्प्लॉय को जितना मन करता था उतना पैसे दे देता था। कहता है तूने बहुत बढ़िया काम किया मेरे साथ, ले पकड़ 10 लाख रुपए, 20 साल की सर्विस थी उसकी। उसी साल एक और एम्प्लॉय और रिटायर हुआ, एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय पसंद नहीं है, कहता काम तो तूने भी ठीक किया लेकिन ठीक है अब तेरी रिटायरमेंट हो रही है, ये पकड़ 5 लाख रुपए। अरे एक को 10 लाख दे रहे, एक को 5 लाख, सर्विस दोनों की सेम है, दोनों ने 20-20 साल काम किया, तो ये होता है एडहॉक। लेकिन अब कहता हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मल स्कीम लेकर आ रहे हैं, फॉर्मूला बनाएंगे, मैथमेटिक्स उस फॉर्मूला के हिसाब से कंप्यूट करेंगे और जो अमाउंट बनेगा वो ग्रेचुटी का दे देंगे। तो कहते क्या इसको हम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मान लें या ना माने? भाई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी उसको माना जाता है जहां पहले कोई पॉलिसी, तो पहले कहां थी पॉलिसी, आप तो एडहॉक कर रहे थे, उसको पॉलिसी थोड़ी कह सकते हैं, तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। सिमिलरली मैं आंसर भी पढ़ाऊंगा इसका आराम से, पहले दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं। मैनेजमेंट डिसाइडेड टू पे द पेंशन टू दोज एम्प्लॉइज हु हैव रिटायर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग 5 ईयर ऑफ सर्विस इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहता मैनेजमेंट कह रही है जिसने 5 साल से ज्यादा कंप्लीट कर लिया हम उसको पेंशन देंगे, रिटायरमेंट होगी जब। सच एम्प्लॉइज विल गेट अ पेंशन ऑफ 20,000 पर मंथ, अर्लियर देयर वाज नो सच स्कीम ऑफ पेंशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। पूछ रहा क्या था कि इसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोले? अरे यार अकाउंटिंग पॉलिसी तब होती अगर ये चीज हो रही होती, पहले आप तो पेंशन ही नहीं दे रहे थे, जब वो चीज ही नहीं हो रही तो उसके लिए ऑब्वियसली देयर वाज नो पॉलिसी एट ऑल। आपने तो पहली बार इस चीज की पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी है, आज से पहले तो पेंशन ही नहीं दिया आपने, तो ये भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं कहा जाएगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं उत्तर। एज पर एएस नंबर 5, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रेपेड आइटम एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अडॉप्शन ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द इवेंट्स और ट्रांजैक्शन व्हिच डिफर इन सब्सटेंस फ्रॉम प्रीवियसली अकरिंग इवेंट और ट्रांजैक्शन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अकॉर्डिंगली। Introduction of a formal gratuity retirement scheme by the employer in place of ad hoc ex gratia payment is not a change in accounting policy. Similarly, adoption of policy for the event or transaction which did not occur previously or that were immaterial will not be treated as a change in accounting policy. तो जो इवेंट पहले हो ही नहीं रहा था पेंशन वाला, आप फिर पहली बार पॉलिसी लेकर आए हो, इसको तो अडॉप्शन ऑफ न्यू पॉलिसी कहेंगे, ना कि चेंज इन दी अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और ये आता है जी AS7 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लेंटी ऑफ टाइम, फिगर्स चेंज करते करते करके इंस्टीट्यूट एग्जाम में पूछता रहता है। लेट अस रीड इट। कहता जी ऑन 1 December 2001 विश्वकर्मा कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड अंडर टूक अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग फॉर ₹85 लाख, 85 लाख रुपए का बिल्डिंग इनको बनाना है। और ये क्या है जी, बिल्डिंग फॉर ₹85 लाख, तो ये क्या हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया। 31 मार्च 2002 यानी कि 4 महीने बाद, 1 दिसंबर को स्टार्ट किया कॉन्ट्रैक्ट, दिसंबर जन फेब मार्च, 31 मार्च को कंपनी फाउंड इट हैड ऑलरेडी स्पेंट 64,99,000 ऑन द कंस्ट्रक्शन। आज तक का खर्चा क्या हो गया 64,99,000। इसको क्या कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में, कॉस्ट टिल डेट, CTD। प्रूडेंट एस्टीमेट ऑफ एडिशनल कॉस्ट फॉर कंप्लीशन इज 32,01,000। ये क्या है जी, कॉस्ट टिल डेट, कह रहा अभी लग रहा है इतना खर्चा और लगेगा, इसको कहते हैं फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट। और जो ये वाली फिगर थी 85 लाख, ये क्या है पुत्र, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्वेश्चन कहता व्हाट अमाउंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द P&L फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 02 एज पर द प्रोविजंस ऑफ AS। तो AS नंबर 7 के हिसाब से आपको सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ अभी। आपको ये तो पता है कॉस्ट कितने लगी, 64,99,000। आप ये थोड़ी कर दोगे 85 लाख का रेवेन्यू माइनस, अरे 85 लाख का रेवेन्यू पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए है भाई, अभी तक आपका कुछ काम पड़ा भी तो है। तो आपको सबसे पहले क्या कंप्यूट करना है, आपको सबसे पहले कंप्यूट करना है स्टेज ऑफ कंप्लीशन की परसेंटेज में कितना काम कंप्लीट हुआ है। कैसे करोगे, आप कहोगे जी इतना खर्चा डिवाइड बाय दिस प्लस दिस, टोटल खर्चा इनटू 100, एक स्टेज ऑफ कंप्लीशन आ जाएगी। रफली मान लो 70% आ गया 70%, तो आप कहोगे टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में से 70% मेरा अब तक का बनता है। आप कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का 70% लोगे, उसमें से माइनस करोगे आज तक की कॉस्ट, तो जो भी प्रॉफिट आएगा रिकॉग्नाइज कर लोगे। लेकिन यहां पर डेफिनेटली आपका लॉस ही आएगा, तो वो लॉस आपको P&L में लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, पैरा नंबर 35 और 36 की रेलिवेंस आएगी। पैरा 35 ये बोलता है भैया कि अगर आपको लगता है पूरे कॉन्ट्रैक्ट पर लॉस होने वाला है तो इंतजार मत करना कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का इंतजार करो, इमीडिएटली लॉस बुक कर लेना। कैसे, आप क्या करो FVC और CTD को ऐड कर लो, आपके पास आ जाएगा TEC, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट को कंपेयर करो, आपके पास टोटल लॉस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में टोटल लॉस आ गया 10 लाख, जिसमें से 3 लाख का तो मेरा करंट ईयर का है, तो जो बाकी का 7 लाख बचा उसे भी आप इमीडिएटली बुक कर लोगे
प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली। ये इस क्वेश्चन का पूरा उत्तर जो है बनता है। तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ उत्तर तो लेके चलदा हां। आ लो जी उत्तर नंबर 3 पुत्र पुत्र ए लो 3 नंबर उत्तर। सबसे पहले मैंने क्या बोला जी, व्हाट वी विल डू, वी विल कंप्यूट द स्टेज ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज। कैसे, कॉस्ट टिल डेट है 64,99,000, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट है 32,01,000, इन दोनों को प्लस कर दो तो ये आ गया जी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 97 लाख रुपए, 97 लाख। और स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकाल लोगे कि भैया आज तक की कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल इतनी लगनी इनटू 100, तो ये 67% आ गया, यानी कि आज तक 67% काम कंप्लीट है। सेकंड पड़ाव आता है स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालने के बाद कि करंट ईयर का प्रॉफिट लॉस निकाल लो। कैसे, करंट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू सबसे पहले टोटल रेवेन्यू में से 67% मेरा इस साल का बन गया, और इस साल की कॉस्ट कितनी लग चुकी है, माइनस कर दो कॉन्ट्रैक्ट को 64,99,000 रुपए, तो आपका लॉस आ रहा है ये 8,04,000 रुपए। क्या हो जाएगा जी, हमारा करंट ईयर का लॉस हो गया। इतना तो आपको P&L में जाना ही पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा आई हैव टू फाइंड आउट समथिंग कॉल्ड एक्सपेक्टेड लॉस एज वेल एज पर पैरा नंबर 35, जिसके लिए हम क्या कहेंगे, यू हैव टू कंपेयर द टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट विच इज पुत्र 97 लाख विद द टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। और जब आपने कंपेयर किया तो आपको पता चला कि आपका तो एक्सपेक्टेड लॉस जो 12 लाख बन रहा है, उस 12 लाख में से आपने ऑलरेडी करंट ईयर का लॉस जो है वो कितना 8,04,000 तो बुक कर ही लिया है। तो जो एक्स्ट्रा रह गया पुत्र कितना 3,96,000 हम कहेंगे प्रोविजन बना दो इसके लिए इमीडिएटली, प्रोविजन फॉर एक्स्ट्रा लॉस टू बी क्रिएटेड इमीडिएटली 3,96,000 रुपए। वंडरफुल क्वेश्चन, वेरी 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 स्पेशल एंड वेरी वेरी पुत्र इंपॉर्टेंट। एग्जाम दे विच मजा आ जाएगा, एक क्वेश्चन आंदा होता है, ठीक है। और बिल्कुल बेहतरीन प्रेजेंटेशन के साथ ही मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वही नोट्स हैं जो हम अपनी क्लास में लिखते हैं, राइट। सो आई कम विद यू टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। AS7 से एक प्रश्न और है, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट कवर्स अ नंबर ऑफ एसेट्स इन व्हाट सर्कमस्टांसेस द कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच शुड बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कहता जी अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में नंबर ऑफ एसेट्स हैं तो कहता किस सिचुएशन में हम उन सभी को अलग अलग मानेंगे। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेगमेंटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सेगमेंटेशन है कि आपने अलग अलग मानना है, और कॉम्बिनेशन होता है इसका उल्टा, मतलब दिखने में सारे अलग हैं लेकिन उनको अलग नहीं मानना, उनको आपने सेम मानना है। हमसे यहाँ क्या पूछ रहे हैं, सेगमेंटेशन। तो हमें कंडीशंस बतानी है, 3 कंडीशन है जी AS नंबर 7 में। अगर ये तीनों फुलफिल हो जाती है तो आप कहोगे जी इनको आपने सेपरेट मानना है। आइए देखते हैं। सो इट सेज व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कवर्स द नंबर ऑफ एसेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच शुड बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट व्हेन नंबर 1 सेपरेट प्रपोजल्स हैव बीन सबमिटेड फॉर ईच एसेट। मान लो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, एक दूसरी पार्टी है, उसी पार्टी ने अपने 3 कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करवाना है, लेकिन जब मैंने प्रपोजल सबमिट किए तो मैंने एक प्रपोजल सबमिट नहीं किया, उसके तीनों काम के लिए मैंने 3 अलग अलग प्रपोजल सबमिट करे हैं। नंबर 2, सेपरेट नेगोशिएशंस हैव बीन कैरिड आउट and the contractor and customer have been able to accept or reject that part of the contract relating to each asset। कहता आपकी जो नेगोशिएशन हुई है ऐसे नहीं हुई कि जी आप तीनों का बताओ जी इकट्ठा कितना लोगे ना, तीनों कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की नेगोशिएशन सेपरेट हुई है, और जो समझ में पसंद में नहीं आया, जिसके बारे में बात नहीं बैठी, यू हैड द राइट टू रिजेक्ट दैट एज वेल, और जो पसंद आया उसको एक्सेप्ट कर सकते थे। और अंतिम तीसरी कंडीशन, कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ ईच एसेट कैन बी आइडेंटिफाइड। और जब मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा अगर, तो मुझे तीनों का ही अलग अलग पता होगा कितना कितना कॉस्ट मेरा इनकर हो रहा है, और तीनों का रेवेन्यू भी अलग अलग पता चलेगा। अगर ये तीनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहेंगे आपने उन कॉन्ट्रैक्ट्स को जो चाहे एक ही पार्टी के, लेकिन आपने सबको अलग अलग मानना है। ठीक है पुत्र, आइए जी। सो वी हैव सर्टेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एज वेल। कहता जी अ चेंज इन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट, एसेट की लाइफ होती है, कहता आपने ना चेंज कर दिया उसको, विच नेसेसिटेट्स द एडजस्टमेंट इन डेप्रिसिएशन, उसके कारण डेप्रिसिएशन भी चेंज होगी। कहते जी इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रायर पीरियड आइटम है, या ऑर्डिनरी है, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। आप जब एसेट की यूजफुल लाइफ को एस्टिमेट करते हो, जो डेप्रिसिएशन निकालते हो, जब डेप्रिसिएशन निकालते हो आप कहते हो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप अपॉन लाइफ, तो वो लाइफ खुद ही एस्टिमेट होती है। तो जब कल को उसमें चेंज होगा तो उसके कारण जो डिफरेंस आएगा वो किस कारण से आएगा, क्या कहा जाएगा, दैट इट इज ड्यू टू द चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो 5th का करेक्ट आंसर है डी। और देखते हैं जी, an audit stock verification during the year ending 31st March 01 revealed that opening stock of the year was understated by 5 lakh due to wrong counting। तो आपने 31 मार्च को जब स्टॉक वेरिफिकेशन करी तो पता चला पिछले किसी साल में ना गलती हो गई थी स्टॉक कैलकुलेट करने में,
और जिसकी वजह से हमारे करंट ईयर का जो ओपनिंग स्टॉक है वो 5 लाख कम है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक क्या है, जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है। तो पिछले सालों में ही तो गलती हुई थी, जिसके कारण पता चला कि मेरा ओपनिंग स्टॉक 5 लाख से कम है। कहता जी वाइल फाइनलाइजिंग द अकाउंट व्हाट विल बी योर ओपिनियन। 4 ऑप्शन दिया है, करेक्ट बताना है। पहला ऑप्शन, इट इज नॉट अ प्रायर पीरियड आइटम एंड नो सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। भाई प्रायर पीरियड आइटम तो पक्का है। प्रायर पीरियड आइटम के बारे में क्या लिखा हुआ है एएस नंबर 5 में, पैरा नंबर 15 बड़ी क्लियरली बात करता है प्रायर पीरियड आइटम और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में कि भाई या तो एरर है या ओमिशन है। तो ये क्या है, आपने ओपनिंग स्टॉक अंडरस्टेट किया था ड्यू टू रॉन्ग काउंटिंग। साफ साफ दिख रहा है भाई मिस्टेक है, गलती करी है तुमने। तो ये तो प्रायर पीरियड आइटम है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। सेकंड, it should be treated as a prior period adjustment and should be separately disclosed in the current year financial statement। बिल्कुल सही बात लग रही है, पैरा नंबर 15 यही बोलता है। तीसरा, एडजस्टमेंट ऑफ ₹5 लाख इन बोथ ओपनिंग स्टॉक ऑफ द करंट ईयर एंड प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर शुड बी मेड। कहता 5 लाख की एडजस्टमेंट करो ओपनिंग स्टॉक में, बिल्कुल करनी चाहिए। जब पता चल गया कि गलती हो रही है तो आप ओपनिंग स्टॉक में 5 लाख बढ़ा दो। और दूसरा, क्योंकि पिछले सालों से गलती चल रही है तो प्रॉफिट भी खराब है आपका, तो प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड में भी जो है आपका, उसमें भी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। बी और सी दोनों ही हमें सही लग रहे हैं। और डी कहता जी, डी ऑप्शन कहता बोथ बी एंड सी। हा, ये तो बहुत बढ़िया हो गया, डी ऑप्शन ने खुद ही कह दिया बोथ बी एंड सी। और हमने पहले ही कहा कि ये दोनों ही ऑप्शंस जो हैं ये करेक्ट थी, और हमें डी ऑप्शन मिल गई जहां पर हमें चूज करने को मिला कि बोथ बी एंड सी। अब पता कहीं खुराफाती दिमाग वाले बच्चे होते हैं, सर अगर ऑप्शन डी ना होती, सर अगर ऑप्शन डी में लिखा होता ऑल ऑफ अबव, सर ऑप्शन डी में लिखा होता नन ऑफ अबव, सर हम बी और सी में से किसको चूज करते। बेटा जब बी और सी दोनों ही ठीक हैं तो चूज तो दोनों करना बनता है। अब आप मेरे से ऐसी चीज पूछ रहे हो, ऐसी गलती का सॉल्यूशन पूछ रहे हो, गलती मैंने नहीं करी, गलती करी आईसीएआई ने मान लो, और आप पूछ रहे हो सर हम क्या करें। अब जितने मजबूर आप हो उतना ही मजबूर मैं भी हूं। आप बी और सी में से एक को टिक कराना, सिंपल सी बात है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जी विच वन इज नॉट अ डायरेक्ट कॉस्ट। कुछ कॉस्ट लिखे आगे, कहता बताओ इनमें से डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी नहीं है। पहला, साइट लेबर कॉस्ट। ओके, पहली ऑप्शन पढ़कर पता चला कि एस नंबर 7 की बात कर रहा है। तो डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है, जो कि स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट पर इनकर होती है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पर, एंड इट इज इनकर्ड एट द साइट, और जो हर कॉन्ट्रैक्ट की अलग से पता चल जाए उसको बोलते हैं कि ये डायरेक्ट कॉस्ट है। साइट लेबर कॉस्ट डेफिनेटली डायरेक्ट है। दूसरा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज इन द कंस्ट्रक्शन, ये भी डायरेक्ट कॉस्ट है। सैलरी ऑफ अ सुपरवाइजर सुपरवाइजिंग मोर देन वन कॉन्ट्रैक्ट, हाँ ये डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। अगर मैंने एक सुपरवाइजर रखा हुआ शहर में 4 जगह पर अपना कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, मैंने कहा भी तूने चारों जगह पर सुपरवाइज करना है, तो उसकी जो सैलरी है वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं जा रही, उसकी कॉन्ट्रैक्ट का उसकी सैलरी का हिस्सा तो चारों कॉन्ट्रैक्ट में मैं बांटूंगा। इसको कहते हैं एलोकेटेड कॉस्ट, ये डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होती। और डी कह रहे हैं जी डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट यूज्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, तो जो कॉन्ट्रैक्ट पर प्लांट मशीनरी यूज हो रहा है उसका डेप्रिसिएशन भी डायरेक्ट कॉस्ट ही माना जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली उसी कॉन्ट्रैक्ट पर लग रहा है। तो इसका करेक्ट उत्तर है पुत्र सी, कि जो सुपरवाइजर है ना, जो एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट को सुपरवाइज कर रहा है, उसकी जो सैलरी है वो आपकी एलोकेटेड कॉस्ट बनेगी, वो पुत्र डायरेक्ट कॉस्ट नहीं बनेगी। ठीक है जी, तो बढ़िया सेशन रहा आज का, देखते रहिए सेशन मेरे साथ एंजॉय करते रहे। तो जिन्हें पुत्र लेट ज्वाइन किया तो सेशन हाल तक लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। ठीक है जी, चंगा, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।